Okay, let's start the session. Okay. Now the first important thing is, okay, if you have a space, then we can able to create a uh, partition. So right now, when we install the operating system on VMware, we don't have any space for that. Okay. So वो जब हम operating system install करते हैं, at that time we don't have a space. First of all, we'll check the space, and after that we'll make a partition. Okay. So for that, here I'm using a terminal, and here I will use check. I will check the commands. I will check the space. So first of all, I will use um, d h t h. So does we have any space for that? Anything else? Right now we don't have a space for operating system. So that, okay. So for that, fdisk -l command is used to check the hard drive partitions. Okay, so this is a predefined command. By using that, we can check the hard drive partitions. Okay, this is a very first command. So for that, we need to use a sudo user. So what should I do? I will use sudo login, and by using I will create a root login, and after that we will perform the operation. So for the root login, we will use sudo -i. Yeah, now I am in a root login. So here I will check who am I. I am a root user. Okay, after that, here I will use fdisk, the name of command fdisk. So we have man command to check the what is fdisk. Yeah, so fdisk is a manipulate the disk partition table. So like in operating Windows operating, have E drive, primary drive, and secondary drive. So like that, here is the option manipulate disk table. So these are the some synopsis description. What is a fdisk? Fdisk is additional driven program for creation and manipulation of the partition tables. It understands the formats: GPT format, MBR format, just like what Windows supported MBR format, GPT format, SUN format, HGI format, BSD, binary format. So it will understand the this type of tables. Okay. So in that, we need to understand how we will list out the disk, partition disk, how we will add the disk, how we will add the partition, how we will remove the partition, and how we will format the partition. These are the primary tasks. First of all, we'll see how we will list the disk. Okay, first task is a list disk. So for that, we need to use this command fdisk -r. So it will list out the table. See, it will list out the table. So here I am using the command fdisk -l. So what are the points? First, disk. The disk name is dev/dev/sd. The disk name is /dev/sd. I have 447 GB disk space. That means I have 480.103.98.1056 bytes memory, and these are the sectors. The unit of sector, each sector considered as 512 bytes. Logical physical same. Input output size 512 bytes minimum, and optimum is also same. Disk table type, what is the type? Format is GPT. In the previous section, in the previous command man fdisk, we already seen there are different types of formats. GPT is there, MBR is there, like that. So disk unique identifier name is this one. Okay. After that, we have total 5 partitions, devices. That means these are the partition. /dev stands for devices.
slash SDN1, SDA2, SDA3, SDA4, and SDA5. These are the 5 partitions are available. Now, the starting sector, first 2 MB. Okay, first 2 MB is required for GPT boot option. After that, the starting 2 MB, that means 1024 stands for 1 MB. 1024 plus 1024, that means 2048. Okay, that will be a 2 MB. The starting sector is a 2 MB and end is 1085539. Okay, end sector. So that will be printed as your disk. Total size is 529 MB. Okay, second SDA2, SDA3, SDA4. So this is the starting sector, starting point of partition, and this one is the ending point of the partition, and this one will be the size. ये आपकी क्या है, size है. Okay, after that we have another disk. Okay, I have two disks. I have another disk. Disk dev slash HDB. That means I have two disks. When you try to install this on your, when we try to use this command in your hard drive, you will get only one disk. Okay, get only one disk. So the second disk I have, the size of that 111.8 GB. Total bytes, sectors same starting point, and type of format is DOS. Okay, how many partition I have in second disk? Disk is first one is a dev slash SDB1, dev slash SDB2, and third one is a dev slash SDB5. Okay, starting sector, end sector. Okay, total size and something. Okay, so this is the information by using fdisk we will get fdisk hyphen l. अब जब ये आप प्रैक्टिकल आप आपके डिवाइसेस पे करोगे तो ये परफॉर्म नहीं होगा. ओके, बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे but we cannot able to create partition in VMware. What is the reason behind that? Because when we install that operating system on VMware, we selected automatic partition. What is the meaning of automatic partition? It will create by using own understanding. वो क्या करेगा? Own understanding से partition create कर देगा. That means if we give a 40 GB of space to install Ubuntu operating system, then automatically it will be treated as 32 GB space for OS and 8 GB space for swap memory. That means we'll get 0 MB space remaining. We'll get 0 MB space for remaining. If we get 0 MB space for remaining, then how we will create a partition? We cannot able to do that. हम create कर सकते हैं क्या? नहीं. So for that we need to install or we need to create partition manually. We need to create a partition manually. After that we will get a space. Otherwise we cannot able to get the space. Otherwise हम space create कर सकते हैं क्या? No, we cannot able to do that. So आपको ये practical perform करने के लिए may be दिक्कत आ सकती है. If you don't have any space, don't worry about that. When we join the college, I will provide devices for that. College के desktop provide करूँगा, and after that you can do the practical. Otherwise, just watch one video, or I will provide one video how to create manual partition. So you will get an idea. After that, you can perform a operation. So first command is completed. Which one? Fdisk hyphen l, which will list out the partition. How many partition we have? Okay, now in that we have two options. First one is a primary partition. These are the theoretical point. Primary partition, and second is logical partition. This chapter is very important. Logical partition. Okay, these are the two types of partition. We can create only 4 primary partition.
प्राइमरी पार्टीशन हम मैक्सिमम कितने क्रिएट कर सकते हैं? 4 पार्टीशन. ओके, 4 primary partition only. We cannot able to create greater than 4 partitions. Logical partition, we can create n number of logical partition. Depends on space. आपके पास स्पेस कितना है उसके हिसाब से आप n number of partition कर सकते हैं. In between primary and logical partition, there is a partition called as extended partition. Okay, in between partition, in between primary and in between logical partition, secondary. Okay, in between primary and in between logical partition, we have extended partition. Okay, the size of that partition is very less, like it would be a 1 MB or less than 1 MB extended partition. Okay, so we'll check that how it will be created. Okay, but make a note of that we can create only 4 primary partition. I already created a notes for that. You will get that notes, you can read it carefully, and after that you can perform a operation. Now second important task, how we will read particular disk. हम particular disk कैसे read कर सकते हैं? I will show you. I have two disks. First one is a SDA and second one is a SDB. The size of first disk SDA is near about 120 to 40 480 GB first disk, and second disk is 120 GB. First operating system of SDA is Windows, and second 122, that means SDB, is Linux, and in that Linux we have Ubuntu. ये मैं मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूँ आपको, आपके पास ओनली Ubuntu is available. After that ये साइज हो गए now. Okay, so after that we'll list out the Windows operating system only, and after that Linux operating system. How will check a particular operating system? By using sd command. Okay, -l, it will list out all the both the disks. We'll check one time. See, we have first disk, second disk one, and here we have first disk slash dev slash sda, that means it is a Windows one, and second we have disk slash d sdb, this one is a Ubuntu. So it will list out both the disks. Now I want to view only one disk, first Windows. I want to check only Windows. So what should I do? I will use fdisk slash dev slash sda only. I don't want to view the content of second disk. Okay, I want to view only one disk. So what should I do? Fdisk slash dev slash sda. Is it visible to all? Yes, Yes, sir. sir. Okay, no issue. So I want to check only first disk. See, oh, just 1 minute. -l. Okay, just we need to provide a l. So it will list out only first disk. See, I have only one disk dev slash sda, and the size of that disk, a particular disk, is listed out, and these are the partitions. Okay, these are the 5. Now I want to view second disk. What should I do? Again, fdisk slash dev slash sdb, after that -l, list out. Now check out, I have second disk having name slash dev slash sdb, and the size is 111.8. The size of actual disk is 128 GB. 8 GB is required for another. Okay, 8 GB किसके लिए? लिनक्स के लिए यूज किया है. या सी, मैंने बताया था कि एक्सटेंडेड पार्टीशन भी होता है. ये इज ऑप्शन एक्सटेंडेड पार्टीशन.
ओके ये मैकेनिज्म कैसे होता है? एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में होता है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ लॉजिकल पार्टीशन, if you want to create a secondary partition, then it is a mandatory to create extended automatically create hota hai. If you don't want to create a partition primary, then it will treat as secondary. So जब भी हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो एट द टाइम ऑफ वी कैन एबल टू व्यू दैट, हम वो उस टाइम पे कर सकते हैं। वी रिकॉर्ड एम्प्टी डिस्क, हमें उसके लिए एम्प्टी डिस्क लगती है, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी स्पेस टू परफॉर्म ऑपरेशन। ओके, जस्ट लिस्ट आउट। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे डिस्क के अंदर जाना है। सेकंड ऑप्शन भी देख लिया हमने। फर्स्ट हमने क्या देखा कि इफ यू वांट टू लिस्ट आउट ऑल द डिस्क, देन वी विल यूज एफ डिस्क हाइपन एल। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या देखा हमने कि इफ यू वांट टू लिस्ट आउट अ पर्टिकुलर डिस्क, वी नीड टू प्रोवाइड दैट नेम एंड आफ्टर दैट हाइपन एल, लाइक एफ डिस्क slash dev slash sda slash l, either we can use these way. After that fdisk slash dev slash sdb hyphen l. थर्ड, वी नीड टू एंटर इनटू डिस्क। अब मुझे क्या करना है, डिस्क के अंदर जाके देखना है। ओके मैं दोनों डिस्क के बारे में बताता है, द मीनिंग द वे इज अ similar. How will enter into disk? If you want to enter into disk, just write fdisk slash dev slash sda. Do not enter hyphen l. Hyphen l is used for the list out only. Fdisk slash dev slash sda. By using this command, we can enter into the disk. दूसरे डिस्क के अंदर एंटर करना है, व्हाट शुड आई डू? fdisk slash dev slash sdb. बट केयरफुली, जब भी आप डिस्क के अंदर जाते हो ना, तो अगर छोटी सी भी गलती होती है तो होल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकती है या आप लॉग इन नहीं कर सकते। सो केयरफुल अबाउट दैट व्हेन वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन, बी केयरफुल। ओके आपको आता है तो भी थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी जैसे ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो भी डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन स्लैश etc स्लैश fs tab, द नेम ऑफ दैट फाइल। अगर गलती से भी कुछ भी एंट्री मिस हो जाती है इसके अंदर, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। जैसे हम परफॉर्म करते हैं ग्रेप ऑपरेशन, टारो ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। बट दिस इंपॉर्टेंट टास्क, ओके आज का जो टॉपिक है partitions and swap, it will directly affect on your operating system. So be careful on while doing the practice. It is very most important for that. So in that section, we'll enter into the disk. Now, first of all, we'll enter into first disk dev slash sda. See, when we enter into that list, so ये utility of Linux version दिखाएगा. Changes will remain in the memory only until you decide to write them. Be careful. Here we have a warning. Be careful before using the write command. It's most important. Changes random access memory में रहेंगे before until you decide to write them. जब आपने write किया तो all task complete हो जाएगा. So be careful before using the write command. Write means w command. राइट करने से पहले एक बार फिर से सोच ले, ऐसा एक वार्निंग दिखा रहा है। सो कमांड एम फॉर हेल्प, आपको नहीं पता है तो पहले क्या करो, एम करो। सो इट विल लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ कमांड। इसके अंदर डिस्क के अंदर कौन से कमांड्स है ये लिस्ट आउट करेगा। सो हियर वी हैव ऑप्शंस। First of all, we have generic commands. If you want to delete the partition, then use D only. If you want to list out free unpartitioned space, use capital F. List out known partition types, use L. N, add new partition. P, print the partition. T, change the partition type. अब partition types हमें तीन ही पता है ना. First one is primary, second one is logical, and third one is extended. इसके अंदर बहुत होते हैं. But if you want to change the partition type, then we need to use T. Verify the partition, use V. Print the information about the partition, use I. So in that, we will use only 4. First, we can able to use D. हम use करेंगे D as a delete partition. We'll check how we'll delete the partition. After that, we already use L, list out the partition.
After that, we will use new N to create new partition. We will use P to print the partition table, and we will use T only. Rest of we are not using this partition in the generic. हम नहीं यूज करेंगे. Okay. So being as a fresher, इसकी वजह से हम नहीं यूज करेंगे. अगर आप आफ्टर दैट तो हम यूज करेंगे. मिस्क में हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे. प्रिंट दिस मेन्यू एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, वी आर नॉट यूजिंग दिस. स्क्रिप्ट भी हम नहीं यूज करेंगे. हाँ, ये यूज करेंगे सेव एंड एग्जिट. W is used for the write table disk and exit. It is most important. Q, quit without, quit without saving changes. ये भी हम यूज करेंगे. Is that okay? And label भी हम नहीं यूज करने वाले. Okay. So हम यूज क्या क्या करने वाले हैं? Here we will use P, print the table information. After that we will use D, delete the partition. After that we will use new N to create the partition. We will use T also to change the type of partitions only. And after that we will use W to write and Q to quit. Okay. Now here I am using a P. First, print the table information. Here is your printable information. ये आपकी टेबल इंफॉर्मेशन, ये बताएगा आपको कि आपके पास कितने डिस्क, कितने पार्टीशंस. वी हैव 5 पार्टीशंस. SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, SDA5. When we trying to W, तो ये राइट कर देगा. सी राइट, मैंने ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है, फिर भी द पार्टीशन टेबल हैज बी अल्टर्ड. ओके. रीड राइट, रीड पार्टीशन टेबल एंड सिंकिंग दिस. सो ये W यूज करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल करना है कि हमने क्या किया है. एंड Q से हम क्विट कर देंगे. ओके. Q से हम क्विट, जैसे भी हम Q करते हैं तो हम बाहर आ जाते हैं. नाउ we'll enter into another disk also. fdisk/dev/sdb आ गया हम इसके अंदर. P for print table and Q print the cable. फिर से डिस्क के अंदर जाते हैं. P print the table. अब right now I have 120 GB of disk. मेरे पास 120 GB ही डिस्क अवेलेबल है. अमॉन्ग दैट 103.9 GB इज फॉर प्राइमरी पार्टीशन. ओके. और ये बूटिंग का बूट फ्लैग भी यहाँ ऑन है, मतलब बूट यहाँ से होने वाला है. सेकंड एक्सटेंडेड पार्टीशन मेरे पास है हैविंग साइज 7.9 GB. एंड थर्ड वन इज आई हैव स्वैप. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज अ स्वैप. ओके. जो भी आपका हार्ड ड्राइव का स्पेस होता है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्वैप. ओके. जैसे हमने लास्ट सेशन में चेक किया था कि if your application having if your application want to install, if you have a gaming application and now you need to use that gaming application, but you have only 4 GB of random access memory, that is a main memory. Okay. And for that application we require a 6 GB of memory to install that application or to access that application. So what happened, the next 2 GB memory will be accessed from the drive and will be treated as a swap memory. And after that this main memory plus swap memory will use and that application will be executed. Okay. That particular application will be installed and accessible. So second one is a swap memory. In the case when I trying to create new partition, in that case when I trying to create a new partition, I don't have a space. We add these 3 spaces, will get 120 GB of memory. So at that time आप practical नहीं perform कर सकते. So for that we need to use manual partitioning. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, manual partition. बट हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था तो ऑटोमेटिक पार्टीशन यूज किया था. नाउ click on new. See here, no free sectors. Read it carefully. First, all space for the primary partition is in use. Adding logical partition 6. Okay, logical क्यों किया है? Because यहाँ extended word आया है. जब तक आपके सामने extended word नहीं आता है तो next option क्या होता है, logical ही होता है. समझ में आ रहा है आपको? और उसका आईडी, प्राइमरी पार्टीशन का आईडी याद रखना है, कभी भी 83 होता है. स्वैप का कभी भी आईडी 82 होता है. वी नीड टू चेंज बाय यूजिंग टी.
ओके, चेंज द पार्टीशन आईडी। एंड 5 भी एक्सटेंडेड का ही होता है। अगर एक्सटेंडेड नहीं है, दैट मीन्स वी कैन एबल टू क्रिएट अ प्राइमरी पार्टीशन। एंड हाउ मेनी पार्टीशन वी कैन एबल टू क्रिएट? ओनली 4 पार्टीशन we can able to create by using a primary. We cannot able to create primary partition greater than 4. Okay, so now when I press n button to create a new partition, I got a new message: no pre-sectors are available. If we don't have any space to create a partition, then how we will create a partition? Can I able to create a partition? No. For that purpose, I will use disk 1. In that, I have 800 KB of space available. मेरे पास 800 KB of space available है, less than 1 MB. So मैं डेमो पर्पज के लिए आपको दिखा सकता हूं how we will create the partition. But जब आप ये आपके पीसी पे परफॉर्म करोगे तो you will get same message. आपको सेम मैसेज दिखाई देगा. सो फॉर दैट वी नीड टू डू मैनुअल पार्टीशनिंग. सो मैनुअल पार्टीशनिंग का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, या आई विल कंडक्ट वन मोर सेशन आफ्टर फ्यू डेज के बारे में मैं ये आपको सेशन क्रिएट करके दे सकता हूँ. आफ्टर दैट यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल. अदरवाइज अब कॉलेज स्टार्ट ही होने वाला है, तो कॉलेज में आके आप हार्ड ड्राइव पे परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो अमंग दैट 2 ऑप्शन प्रीफर करके आप परफॉर्म करो. नाउ अब हम प्रैक्टिस करेंगे पार्टीशनिंग की. सो एफ डिस्क स्लैश डेव स्लैश एस डी ए, इसके अंदर मुझे पार्टीशन का स्पेस अवेलेबल है. नाउ आई कैन यूज दिस. ओके, पी फॉर प्रिंटेबल. आई हैव 5 डिस्क, इसके अंदर मेरे 5 डिस्क है. इसके अंदर मुझे एक्सटेंडेड ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा. ओके, सो नाउ आई विल यूज एन फॉर क्रिएट अ न्यू पार्टीशन. सी, जैसे भी मैंने एन यूज किया, एम फॉर हेल्प एन यूज किया है, तो ये क्या बोल रहा है? पार्टीशन नंबर. आई हैव 5 पार्टीशंस, SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, SDA5. मतलब न्यू पार्टीशन जो आने वाला है उसका नंबर क्या है? 6. आपको नंबर चेंज करना है क्या? नहीं, आई डोंट वांट टू चेंज, सो आई विल यूज ओनली 6. मैं क्या करूंगा? 6 ही यूज करूंगा. सेकेंड, फर्स्ट सेक्टर, पहला सेक्टर पार्टीशन 6 का फर्स्ट सेक्टर क्या है? अभी ये स्टार्टिंग सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग सेक्टर क्या है? 2048. ये क्या है? 40 लास्ट में, 40 लास्ट में, 08 लास्ट में, 48 स्टार्टिंग. दीज आर द एंडिंग सेक्टर. अभी इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ आपको यहाँ स्टार्टिंग सेक्टर देना है. किसका? पार्टीशन नंबर 6 का स्टार्टिंग सेक्टर देना है. तो यहां देते समय जो लास्ट पार्टीशन, उसके आगे का सेक्टर आपको पास करना है एज अ स्टार्टिंग सेक्टर. ओके, सो हियर आई विल पास एंडिंग सेक्टर एज अ 75 नहीं करना, 75 ऑलरेडी यूज है. ओके, व्हेन वी ट्राइंग टू एंटर, सो ये मैसेज देगा सेक्टर 9377037 इज ऑलरेडी इन यूज. डू वन थिंग, जो लास्ट का सेक्टर है आपका, उससे एक आगे बढ़ा दीजिए. 75 की जगह 76 कर दीजिए. ओके, नाउ ओके. अब ये पूछ रहा है लास्ट सेक्टर क्या है. अब यहां आपको ना 2 ऑप्शंस मिलते हैं. डायरेक्टली एंटर कर दो, दैट मींस बाय डिफॉल्ट जितना भी स्पेस रहेगा इट विल बी ट्रीटेड एज योर. आइदर वी कैन यूज दिस वे, और आइदर वी कैन यूज just 1 minute. Yeah, either we can use this way, either we can use word label. Yeah. Either we can use only enter, or I can use plus 2G. ओके, ऐसे कर सकता हूं मैं. दैट मीन्स प्लस 2GB क्या होगा? 2GB स्पेस विल बी अलोकेटेड, प्लस 500M. इससे क्या होगा? 550 MB मेमोरी विल बी अलोकेटेड. ओके, ये आपको पास करना है लास्ट सेक्टर को. ओके, जैसे भी आप डिफॉल्ट करते हो, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ जितना भी स्पेस है विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टीशन टाइप. फॉर एग्जांपल, आई हैव ओनली 800 KB, मेरे पास इतना ही है, तो मैं क्या करूंगा? जस्ट एंटर कर दूंगा. आइदर वी कैन यूज प्लस 2G. इतना ही नहीं है, 2G नहीं है. अब अगर आपको 100 GB करना है, सो आई विल यूज 100G.
100 GB space will be allocated for the partition. So depend है आपको. Right now मुझे कुछ भी नहीं करना है. So मेरे पास सेक्टर ही अवेलेबल नहीं. 76 के बाद में I have only 3054 only. 13676 से मेरे पास 30 ही अवेलेबल है. So I will use enter. See, created a new partition having name sys of type Linux file system and the size is 8395 kilobyte. मेरे पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है राइट नाउ इस डिस्क के अंदर भी. ओके, बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क है, बट स्टिल आई हैव अवेलेबल टू परफॉर्म सम प्रैक्टिकल. अब मैं क्या करूंगा, पी यूज करूंगा. व्हेन आई यूज द पी, यहां मेरा लास्ट पार्टीशन SDA5 था. नाउ चेक आउट, लास्ट पार्टीशन इज SDA6 एंड द पार्टीशन टाइप इज लिनक्स फाइल सिस्टम. अब इसका पार्टीशन का टाइप कौन सा है मेरा, लिनक्स फाइल सिस्टम. दैट मीन्स माय पार्टीशन इज क्रिएटेड. टू व्यू द कंटेंट ऑफ पार्टीशन टेबल यूज पी. पी ही यूज करना है. तो 6 नंबर पार्टीशन इज क्रिएटेड. जैसे मैंने एंटर किया था डिस्क में, वहां मुझे एक वार्निंग आया था, राइट करने से पहले एक बार चेक कर लो. तो मैंने पार्टीशन बना दिया. नाउ आई कैन यूज W टू राइट द फाइल सिस्टम. W जैसे मैंने राइट कर दिया, अब मुझे ये पूरा अफेक्ट करना है टेबल. देन आई विल यूज पार्ट प्रोब कमांड. द नेम ऑफ कमांड इज अ पार्ट प्रोब. ये क्या करता है, पर्टिकुलर डिस्क परमानेंटली राइट कर देता है. ओके, रिबूट करने के बाद में भी चेंजेस एज इट इज रहते हैं. नाउ एवरीथिंग इज ओके. के अंदर फिर से हम चेक करते हैं बाय यूजिंग लिस्ट आउट कमांड. ओके, एफ डिस्क स्लैश dev slash sda-l. Now you can check we have slash dev slash sda6 partition available. मेरे पास 6 नंबर का पार्टीशन अवेलेबल है. ओके, सो नाउ अब मेरे पास पार्टीशन तो अवेलेबल है. नाउ वी विल डिलीट दैट पार्टीशन. हमने पार्टीशन क्रिएट करना सीख लिया. वी विल डिलीट दैट एंड आफ्टर दैट वी विल क्रिएट वन मोर टाइप. So to delete them again, I will enter into the disk. Enter करना है तो fdisk slash dev slash sda. See, be careful before using the write command. पहले हम p करेंगे. Print, हमारे पास 6 नंबर का पार्ट अवेलेबल है. After that I will use d to delete. डिलीट करने के बाद में ये क्या बोल रहा है, पार्टीशन नंबर. एंटर. जैसे मैंने यहाँ गलती से 1 कर दिया तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो गया. जब तक मैं राइट करता नहीं तब तक कुछ ऑप्शन नहीं है. ओके, सो इसलिए केयरफुल. ये बाय डिफॉल्ट कौन सा पार्टीशन सिलेक्ट करता है, लास्ट वाला. डिफॉल्ट पार्टीशन इज अ 6. अगर आप कुछ भी नहीं पास करते देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ 6, बट वी नीड टू प्रोवाइड अ पाथ. कौन सा पार्टीशन डिलीट कर, हियर आई विल प्रोवाइड 6. एंटर. यहां मैसेज आ गया पार्टीशन 6 इज डिलीटेड. पार्टीशन 6 क्या हो गया, डिलीट हो गया. नाउ again I will use P. यहाँ SDA6 available है. When we use P, now we don't have a SDA6. जैसे भी पार्टीशन डिलीट हो गया, I will use W to write it. एंटर कर दिया, अब राइट हो गया मेरा. ओके, नाउ अगेन we will use part probe command. यहाँ मैंने part probe कर दिया. अब मैं डिस्क से बाहर हूँ. Now we will check the disk out. We don't have a SDA6. मेरे पास SDA6 अवेलेबल नहीं है. दैट मीन्स पार्टीशन डिलीट कर दिया. अब हमने यहाँ 2 टास्क सीखे. फर्स्ट, by using n we can create new partition and second by using d we can delete the partition. अब क्या करना है आपको कि वो पार्टीशन फिर से बनाना है एंड आफ्टर दैट उसको फॉर्मेट करके उसको माउंट करवाना है. ये माउंट में भी 2 ऑप्शन है, टेम्पररी माउंट एंड परमानेंट माउंट. ओके, माउंट करना है मतलब क्या है, पर्टिकुलर पार्टीशन मुझे यूज में लाना है. दैट टर्म कॉल्ड एज अ माउंट. यूज में लाना है. ओके, वो पर्टिकुलर स्पेस कौन से तरह डायरेक्टरी को असाइन करना है एंड उसे मुझे यूज करना है. टेम्पररी से क्या होता है, ओके, व्हेन वी माउंट टेम्पररी डायरेक्टरी पर टेम्पररी पार्टीशन हम माउंट करते हैं एट द टाइम जब तक आपका सिस्टम चालू है तब तक ही आपको वो डायरेक्टरी माउंटेड मिलेगी या वी कैन यूज दैट. When we restart our system, temporary mount will be removed. And second option होता है permanent mount. Permanent mount कैसे होता है, अब कितनी बार उसको रिबूट कर दो या सिस्टम रिस्टार्ट कर दो,
आपका माउंट एज इट इज रहेगा। सो बिफोर परफॉर्मिंग माउंट ऑपरेशन इट इज मैंडेटरी, आपको क्या करना पड़ता है, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। हमने देखा था ये फाइल फॉर्मेट में अंदर वी हैव ext2 ऑप्शन, हमारे पास फाइल फॉर्मेट में ext2 है, हमारे पास फाइल फॉर्मेट में ext3 है, ext3 है, we have ext4 also, we have xfs also, so these are the file formats are available. So फाइल फॉर्मेट करने के लिए आपको पार्टीशन चाहिए, राइट नाउ वी डोंट हैव अ पार्टीशन, हमारे पास पार्टीशन तो नहीं है। SDFI विच इज ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो हमारे पास ऑलरेडी है। सो विल डू वन मोर थिंग, हम डिस्क के अंदर जाएंगे, विल क्रिएट न्यू पार्टीशन, अगेन पार्टीशन नंबर इज 6। ये बोल रहा है फर्स्ट सेक्टर क्या है, सो वी नीड टू एंटर फर्स्ट सेक्टर। पास करने के लिए आपको टेबल प्रिंट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट द टेबल, आफ्टर दैट वी विल क्रिएट न्यू पार्टीशन, पार्टीशन नंबर 6। स्टार्टिंग सेक्टर एंड सेक्टर का आगे का देना है आपको, जो भी आपका एंड सेक्टर है उसके आगे का नंबर देना है, एंड रिमूव बाय 1 एंड एज इट इज रहने दो p। फिर से पार्टीशन 6 इज क्रिएटेड, राइट एंड पार्ट प्रो, जैसे भी राइट करता हूँ तो पार्ट प्रो। आई विल चेक द आउट, लिस्ट करने के बाद में 6 नंबर का पार्टीशन इज अवेलेबल। यहाँ तक ठीक है, यहाँ हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल फॉर्मेट, अब मुझे क्या करना है फॉर्मेट। अभी ये मैं जो टास्क कर रहा हूँ ये रूट से ही कर रहा हूँ, दैट्स मीन देयर इज नो नीड टू यूज सूडो, सूडो यूज करने की मुझे जरूरत नहीं। अगर आप नॉर्मल यूज से कर रहा हो तो हर टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सूडो यूज करना है। सो डू वन थिंग, यूज सूडो हाइफन आई एंड परफॉर्म ऑल दिस ऑपरेशन बाय यूजिंग अ सुपर यूजर। तो इसलिए सूडो यूजर करने की जरूरत नहीं। So after that we need to format the disk. How we will format? mk make fs make file system. Okay, क्या करना है, mkfs make file system फॉर्मेट करने के लिए डॉट। अब 2-3 बार टैब प्रेस करना है आपको। ये टैब प्रेस करने के बाद में दीज आर द फाइल फॉर्मेट्स अवेलेबल, जो भी डिस्क आपको फॉर्मेट करना है। आपके डिस्क का नाम याद रखना है आपको। ओके, आपकी डिस्क का नाम है 6 नंबर। सो mkfs.bfs है, .ext3 है, .fat है, ntfs है, cramps है, ext4 है, minix है, vfat है, ext2 है, extended to dev है, ms-dos है। so these are the file format are available, जिससे हम डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये फाइल फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है। सो आई विल यूज ओनली ext4 राइट नाउ। किसको फॉर्मेट करना है, मेक फाइल सिस्टम विथ एक्सटेंशन 4/dev, ये यहां केयरफुली करना है, SDA6 को करना है। पाई को कर दिया तो ऑलरेडी जो फॉर्मेट है वो रीफॉर्मेट हो जाएगा, सो इसे गलती नहीं करना है। मेक फाइल सिस्टम डॉट ext4/dev/SDE6 एंटर करना है। तो यहाँ क्या है, make to fs वर्जन dev SDA6 contains a swap file system, do you want to proceed। यहाँ swap ये पार्टीशन ऑलरेडी यूज हुआ था, तो ये बोल रहा है कि really do you want to use, so we need to press yes yes। file system is too small for journal, creating file system with 836, ये skip that part because we don't have enough space, but still allocating group tables done, writing inodes done, super blocks done। ओके, दैट मीन्स हमारा फाइल फॉर्मेट हो चुका है, हमारा डिस्क फॉर्मेट हो चुका है। ओके, ये मैंडेटरी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट, अब फाइल फॉर्मेट हो गया है, नाउ वी नीड टू माउंट दैट डिस्क। अब वी हैव टू ऑप्शंस टू माउंट, वी हैव टेम्पररी माउंट एंड वी हैव परमानेंट माउंट। अब माउंट के लिए वी रिक्वायर्ड अ डायरेक्टरी, विल चेक आउट we have, do we have any directory, yes we have, so I will remove that directory। हम पहले ये directories remove करते हैं, we don't want to use that directory। now I'll check out, we don't have a directory, it's also there, so we need to create one directory, mkdir new underscore mount, the name of directory others,
अब हमें क्या करना है कि 809 का जो मेरा केबी का स्पेस है, एज्यूम दैट आपके पास ये जो स्पेस है ये 2 GB 10 GB इतना अवेलेबल है। राइट नाउ वी डोंट हैव अ स्पेस, इसलिए हम इस पे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो वी नीड टू माउंट दैट 839 ऑफ केबी ऑन न्यू अंडरस्कोर माउंट। ये मुझे यहाँ माउंट करना है। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, डी एफ हाइपन एच कैपिटल टी, यहाँ चेक करना है। यहाँ आपके पास कहीं आपको पूरे माउंटिंग ऑप्शंस दिखाई दे रहे, पूरे स्लैश डेव स्लैश रन स्लैश पार्टीशन स्लैश डेव स्लैश एस एच एम रम लॉक सिस रन। तो जब भी आप माउंट करते हो तो ये कमांड के अंदर आपको आपका पार्टीशन माउंट होने के बाद दिखता है। बट राइट नाउ यहाँ कहीं आपको न्यू माउंट दिख रहा है क्या, न्यू अंडरस्कोर माउंट नहीं, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर माउंटेड नहीं है। ओके, टेम्परेरी भी नहीं है एंड परमानेंट भी नहीं है। सो फॉर दैट हियर यूज माउंट। माउंट किसको करना है, स्लैश डेव स्लैश एस डी ए सिक्स को कहां पर करना है, उसका पाथ देना है। ओके, पाथ के लिए हमें क्या चेक करना है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट के अंदर है, दैट मीन्स हमें पाथ देना है रूट के अंदर न्यू माइंड को। जैसे भी हम चेक करते हैं यहाँ फिजिकली ls करके, तो न्यू माउंट अवेलेबल, यहाँ आप चेक करो ls करके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश रूट स्लैश न्यू अंडरस्कोर माउंट। ये आपको केयरफुली देखना है कि पाथ क्या है उसका। नाउ हियर आई विल यूज माउंट। माउंट करना है, किसको माउंट करना है, स्लैश डेव डिवाइसेस उसके अंदर एस डी ए सिक्स को किसके पास माउंट करना है, कहाँ माउंट करना है, स्लैश रूट के अंदर न्यू अंडरस्कोर माउंट, यहां माउंट करना है मुझे। एंटर, डन। नाउ चेक डी एफ हाइपन एच टी, स्मॉल h ह्यूमन रीडेबल, t फॉर ओके डिस्प्ले, एच टी करना इसके अंदर, एंटर करो। नाउ चेक आउट, एट द एंड ऑफ दैट स्लैश रूट न्यू माउंट इज अवेलेबल। और किसने माउंट किया है, स्लैश डेव स्लैश एच डी सिक्स ने माउंट किया। फाइल फॉर्मेट क्या है उसका, एक्सटेंशन। साइज कितनी है, 818 KB। यूज कितना हुआ है, सेकंड 17 KB। अवेलेबल कितना है, 744 KB। कितने परसेंट यूज हुआ है, ओनली 3% यूज। अब ये माउंट कौन सा है, ये माउंट है टेम्पररी माउंट। ये जो माउंट है कौन सा है, टेम्पररी। जब आप सिस्टम रीबूट करते हो और इनिट 6 करते हो, इनिट 6 मतलब क्या होता है, अब ये ट्राई कर दो, इनिट 6 जैसे भी करते हो ना तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट होता है, दैट मीन्स रीबूट होता है। ओके, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ये टेम्पररी पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब ये मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैंने परफॉर्म किया तो मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट जो भी आपको शेयरिंग किया है सिस्को का, ये पूरा चले जाएगा। फर्स्ट फिर से मुझे मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप घर पे करके देखो, जैसे पार्टीशन करते हो तो रिबूट करके देखो, ये जो टेम्पररी पॉइंट है ये पूरा चले जाएगा। ये कमांड आपको भूलना नहीं है, df हाइपन एच टी, ह्यूमन रिलेबल फॉर्मेट में ये दिखाई देता है। ओके, ये क्यों यूज किया जाता है कि एग्जिस्टिंग पार्टीशन में कितना स्पेस है और कौन सा पार्टीशन माउंटेड है, कहां पे माउंटेड है, उसका फाइल फॉर्मेट क्या है, ये चेक करने के लिए कमांड यूज किया जाता है, df एच टी। एच स्मॉल होता है, एच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रीडेबल करने के लिए होता है, और इसके अंदर वो डिस्प्ले करते हैं। ये टेम्परेरी माउंट है। अब मुझे यहां से अनमाउंट करता हूं, जैसे मैं ये माउंट मैंने टेम्परेरी किया था, आई विल यूज अनमाउंट। अनमाउंट किस करना है, स्लैश डेव स्लैश एस डी ए सिक्स को करना है, दैट्स इट। यार आपको रूट डायरेक्टरी का पास नहीं बात करना है, यहाँ आपको न्यू माउंट का पास नहीं देना है, जस्ट वी नीड टू प्रोवाइड दिस नेम स्लैश एस डी सिक्स। एंटर करो, अभी अनमाउंट होगा, फिर से डी एफ हाइपन एच स्मॉल कैपिटल टी। नाउ चेकआउट, यहाँ पहले दिखाई दे रहा था मुझे स्लैश रूट स्लैश न्यू माउंट दिखाई दे रहा था और यहाँ डिस्क का नाम भी दिखाई दे रहा था, बट राइट नाउ यहाँ नहीं अवेलेबल। अवेलेबल क्या नहीं, दैट मीन्स मैंने क्या किया, टेम्पररी माउंट भी कर दिया, अनमाउंट भी कर दिया। तो ये माउंट का डिफरेंट पाथ, टेम्पररी माउंट करना है या टेम्पररी
अनमाउंट करना है। ओके, सो यहाँ किसी को क्यूरी है? If you have any query, let me know. I will resolve that, or otherwise I will proceed for next permanent mounting. इसके पूरे नोट्स मिलेंगे आपको परफॉर्म करने के लिए, और ये केयरफुली करना पड़ता है। ओम 9 o'clock, that means rest of us. रितिका येस सर. काय क्युरी आहे इथपर्यंत? नाही सर. ऋषिकेश, प्रवीण, राधेश्याम, अमोल, आदिति? सर प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल करके बाद ही देखना पड़ेगा, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको केयरफुली पहले नोट्स पढ़ना है, ये वीडियो 2-3 बार पढ़ना है और उसके बाद में ही प्रैक्टिकल करना है। ओके, अदरवाइज प्रैक्टिकल नहीं करना है इसका, ये बहुत हेवी है, समझने के लिए हेवी नहीं है, बट आपके डिस्क पे कुछ अफेक्ट हुआ ना तो मे बी चांसेस है। नाउ हम अब परमानेंट माउंट करेंगे। परमानेंट माउंट के लिए हमने डायरेक्टरी तो क्रिएट कर लिए, चेंजेस कहाँ करने पड़ते हैं? टू मेक अ परमानेंट माउंट आपको /etc/fs टैब के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ये फाइल है, fs tab is a file, so we can read that file by using, we can edit that file by using vi editor, by using vim editor, by using nano editor, डिपेंडिंग है। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। हियर आई विल यूज vi ओनली, vi/etc/fs tab। जैसे मैं यहाँ एडिट करता हूं तो यहाँ ऑलरेडी डिस्क के 2 नाम है, उसको कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, सो हियर आई विल प्रेस आई, एंटर। ओके, तो इंसर्ट मोड में चले जाऊंगा। अब यहाँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सेक्शन में नाम देने हैं। ओके, सो हियर आई विल मेक कमेंट। तो 6 सेक्शन बताता हूँ। डिस्क नेम, फर्स्ट क्या होना है, डिस्क नेम देना है। यहाँ आपको डायरेक्टरी पास करना है कि येस सर. आता येतोय. येतोय मा- येस सर. कॉल आया था मुझे। सो यहाँ डिस्क शेयर ऑलरेडी ऑप्शन है क्या? यस, स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है ना मेरी? एक बार रिप्लाई तो स्क्रीन विजिबल है मेरी? येस सर. दिसतंय. ओके, इज अ डिस्क नेम, सेकंड वन इज अ डायरेक्ट, दैट मुझे क्या करना पड़ता है, फाइल फॉर्मेट प्रोवाइड करना पड़ता है थर्ड सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन में मुझे डिफॉल्ट्स पास करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट बूटिंग ऑप्शन के लिए 0 रहता है। ओके, ये एरर्स चेक करना पड़ता है यहाँ, हियर 0 0। ओके, सो डिस्क चेक एंड होगा तो वी नीड टू चेक। अगर 1 1 पास करते हो तो ये बूट करते समय हर बार आपकी डिस्क चेक कर will provide a false 0 0। तो डिस्क चेक नहीं करना है, एरर भी चेक नहीं करना है, सो हियर वी विल पास 0 0। ये फॉर्मेट में आपको करना पड़ता है। तो हमारे पास अवेलेबल /dev/sda6 डायरेक्टरी भी है, /रूट के अंदर न्यू अंडरस्कोर माउंट। फाइल फॉर्मेट भी पता है मुझे, फाइल सिस्टम ext4 से हमने फॉर्मेट किया था। उसके बाद में हम डिफॉल्ट एज इट इज रख देंगे।
DEFAULTS डिफॉल्ट्स, और डिस्क में चेक नहीं करना है और एरर्स भी नहीं चेक करना है। ओके, नाउ ये ऐसे आपको डिस्क माउंट करना है, /dev/sda6/root/new mount extension 4 default 0। नाउ एस्केप बटन एंड राइट। नाउ हमने एंट्री तो कर ली DF-H कैपिटल T से, बट यहाँ आपको माउंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। हमने एंट्री की है ओनली, माउंट किया है क्या? नहीं। सो टू माउंट दैट डिस्क वी विल यूज mount-A, माउंट ऑल। अब ये माउंट हो गया। नाउ विल यूज DF-H T, सॉरी H T। At the bottom you will get same message /root/new mount and disk name is a /dev/sda6। अब ये जो माउंट है ये आपका परमानेंट माउंट हो गया। आप सिस्टम रिबूट करो, init 6 यूज करो, init 0 यूज करो। init 0 मतलब क्या होता है? शटडाउन होता है। init 6 मतलब रिबूट, तो भी माउंट अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है? इसे भी अनमाउंट करना है आपको, माउंट करो। यू माउंट कहते हैं इसके, अनमाउंट, और पाथ देना है /dev/sda6। अनमाउंट हो गया। चेक करो DF-H कैपिटल T, सी यहां से चले गया। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जैसे भी यू माउंट आपका डिस्क तो अनमाउंट हो गया, बट इसकी एंट्री एफ स्टेप के अंदर है। जब आप इसको रिबूट करोगे और इसके अंदर एंट्री रहेगी, दैट मीन्स कर्नल क्या करेगा? वो डिस्क को फाइंड करने की कोशिश करेगा और एरर मारेगा और फिर सिस्टम चालू ही नहीं होगा। सो दैट मीन्स यहाँ से जब यू माउंट करते हो, अनमाउंट करते हो, इट इज अ मैंडेटरी आप एफ स्टेप की जो एंट्री है उसे भी रिमूव करो। इट इज मैंडेटरी, उसे भी रिमूव करना है। सो भी आ जाओ, एंटर जाओ इसके अंदर। सो डू आइदर हियर यूज हैश कमेंट, एक तो ऐसा करो हैश करके कमेंट करके, और सिंपली आप उसे एस्केप करके dd प्रेस करते हो। dd से हम एडिटर हमने पढ़ा था, dd से क्या होगा? पर्टिकुलर लाइन डिलीट हो जाएगा। सी dd डिलीट हो गया, भी डिलीट हो गया, 2 बार डिलीट किया। नाउ राइट क्विट, अब ये चेक हो गया। अब रिबूट करने के बाद में आपका सिस्टम एरर नहीं देगा, या वी कैन से दैट इजीली लॉगिन। सो दिस इज द ओवरऑल अबाउट टेम्पररी पार्टीशन, टेम्पररी माउंट एंड परमानेंट माउंट। कभी भी याद रखना है, माउंट करने के लिए आपको, टेम्पररी माउंट करने के लिए एंड परमानेंट माउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। पार्टीशन हमने पढ़ लिया। पार्टीशन प्राइमरी 4 होते हैं, बाकी 5th नंबर का एक्सटेंडेड होता है, और उसके बाद में 6, 7, 8, 9 अप टू स्पेस के हिसाब से पूरे के पूरे क्या होते हैं? लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं। प्राइमरी ओनली 4 होते हैं, 4 ही प्राइमरी होते हैं, अदरवाइज नहीं। और माउंटिंग भी हमने पढ़ लिया, टेम्पररी माउंट होता है एंड परमानेंट माउंट होता है। टेम्पररी माउंट के लिए हम एफ स्टेप के अंदर etc/etc एफ स्टेप के अंदर एंट्री नहीं करते, परमानेंट माउंट के लिए करते। वन मोर कमांड इज देयर, LSBL के, ये आपके ना लिस्ट दिखाई देता है। ओके, सो जैसे भी LSBL के करते हो तो माउंट करने के बाद में आपको यहाँ SDA6 नंबर का पार्टीशन चेक करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। ओके, माउंट कहाँ किया है उसका भी इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मैं टेम्पररी माउंट करता हूँ, यहाँ mount/dev/sda6 कहाँ माउंट करना है? /root के अंदर न्यू, ये टेम्पररी माउंट कर रहा हूँ मैं अभी, माउंट। नाउ विल यूज LSBL के कमांड। सी आपका SDA6 जो होता है ये आपको माउंट कर दिया है। कहाँ माउंट किया है? /root। ये RO टाइप जो होता है ना, ये मेरे पास 0 दिखाई दे रहा है, आपके पास 0 नहीं दिखाई देगा। ओके, व्हाट इज द रीजन? वर्चुअल मशीन के अंदर दिखाई देगा, बट आप अगर फिजिकली आप हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल करते हो तो आपके पास 0 नहीं दिखाई देगा। अगर आपके पास SSD है तो ही ये 0 दिखाएगा, अदरवाइज आपको 1 दिखाएगा। ओके, पार्ट चेंज हो जाएगा इसका। सो ये इतना इंपॉर्टेंट है, SSD होगा तो दिखाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, सो जैसे भी माउंट किया तो LSBL के also one command to check out the partition mount चेक करना है, DF-HT से तो कर सकते हैं, LSBL के भी कर सकते हैं। and one more is there,
ये तो मैंने नाम दिया है SDA6, बट यूनिक नाम होता है। ओके, यूनिक नाम चेक करने के लिए BLK आईडी यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? BLK आईडी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ आप थोड़ा सा चेक करोगे तो यहाँ स्लैश डेव SDA का यूनिक आईडी होता है, UUID। ये आपका यूनिक आईडी होता है। ओके, सो BLK आईडी से ये रिट्राइव होता है। अब आपको FS टैब के अंदर आप जब स्लैश डेव स्लैश SDA6 डालते, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने ये भी डाला ना, पूरा इतना कॉपी करके भी पेस्ट किया ना, तो भी आपका डिस्क माउंट होता है। याद रखना है, हमने एंट्री किया था ना स्लैश डेव स्लैश SDA6, उसके बाद में हमने डायरेक्टरी दिया था। तो इंस्टेड ऑफ स्लैश डेव स्लैश SD स्लैश SDA6 हमने UUID इज इक्वल टू ये भी डाल दिया ना, तो भी ओके है, चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। एल के आईडी से यूनिक आईडी रिट्राइव होते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल अबाउट पार्टीशन चैप्टर। ये पूरा पार्टीशन चैप्टर के बारे में है। नाउ इसमें बारे में कुछ क्यूरी होगा तो मुझे प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करो, मैं आप लोग इसके नोट्स भेजता हूँ, स्टेप वाइज पूरी नोट्स सेंड करता हूँ। ओके, मैंने बना के रखे हैं इसके। नाउ सेकेंड वन इज स्वैप। स्वैप कैसे क्रिएट करते हैं? सो मेरे पास यहाँ फ्री -h नाम की एक कमांड है जिससे मुझे स्वैप मेमोरी की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ये बोल रहा है मेमोरी, मेन मेमोरी मेरे पास 12 GB है। सो यहाँ 11G दिखा रहा है। यूज कितनी है, फ्री कितनी है, शेयर्ड कितनी है, बफर कितने है, एंड अवेलेबल कितनी है, ये मेमोरी। स्वैप मेमोरी मेरे पास कितनी है, नियर अबाउट 8 GB। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास नेक्स्ट पार्टीशन बना के मुझे स्वैप और ऐड करना है। 8 GB मुझे रिक्वायर्ड था, बट आगे चल के मुझे 10 GB रिक्वायर्ड है, तो एडिशनल 2 GB ऑफ स्वैप वी नीड टू क्रिएट। ओके, मुझे 2 GB ऑफ स्वैप क्रिएट करना है। तो स्वैप के लिए भी सेम परफॉर्म है। कैसे? पहले पार्टीशन बनाओ, फिर उसको फॉर्मेट करो, और फिर उसको माउंट करो। ओके, सो सेम थिंग है, इसके अंदर भी टेम्परेरी माउंट एंड परमानेंट माउंट होता है। टेम्परेरी माउंट इसके अंदर कोई यूज नहीं करता है, मैक्सिमम परमानेंट माउंट ही यूज करते हैं। सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल। स्वैप कैसे क्रिएट करना है, सेम थिंग है, fdisk स्लैश dev, बिफोर दैट lsbl के करके देखते हैं कि माउंट ऑप्शन अवेलेबल है कि यस, ये माउंट ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आपकी डिस्क बिजी आएगा। तो पहले आप उसको अनमाउंट करो, स्लैश dev स्लैश SDA6। नाउ LSBL के अब ये माउंट दिखा रहा नहीं है, दैट मीन्स आपका डिस्क बिजी नहीं आएगा। ओके, सो fdisk स्लैश dev स्लैश SDA6। फर्स्ट ऑफ ऑल SDA, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टेबल प्रिंट करेंगे P से, एंड ये पार्टीशन नंबर 6 है उसको डिलीट कर देंगे D, क्योंकि फाइल फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। 6 P करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल नहीं, राइट करेंगे एंड पार्ट प्रूफ करेंगे। नाउ डन। सो हमारे पास फेस डिस्क एम्प्टी डिस्क जैसे थी वैसे ही अवेलेबल हो जाएगा। फिर से हम उसके अंदर एंटर करेंगे स्लैश स्लैश SDA। नाउ प्रिंट करेंगे P से, तो हमारे पास 5 ही डिस्क अवेलेबल है। नाउ विल क्रिएट पार्टीशन, क्रिएट करना है, देन आई विल यूज न्यू एंड पार्टीशन नंबर इज 6 स्टार्टिंग सेक्टर। ये आपको एट द एंड में जो अवेलेबल है उसका वो पाथ देना है, एंड 6 नंबर एक एडिशनल करना है। यस, डन, क्रिएटेड, पार्टीशन क्रिएट हो गया हमारा। अब इसका टाइप चेंज करना है। क्या करना है? टाइप चेंज करना है इसका। ओके, so for that we need to use के
Now I am audible. Yes, sir. Okay. So कॉल आने की वजह से हो जाता है. शो स्क्रीन विजिबल है आपके सामने? Yes, sir. Yeah. Okay. So हमने पार्टीशन है अभी. Now we need to change the part. For that we need to use T. अभी ये किस पार्टीशन का टाइप चेंज करना है? पार्टीशन आपको स्पेसिफाई करना है. वी नीड टू चेंज द पार्टीशन टाइप एज अ 6 नंबर. ओके, x6 करो. अभी यहां बोल रहा है कि कैपिटल लिस्ट आउट ऑल द कोड्स. ओके, अगर आपको कोड नहीं पता है तो आपको कैपिटल L करना है. बट राइट नाउ वी 82 फाइल मेमोरी का फाइल फॉर्मेट जो होता है उसका नंबर है. एक्सटेंडेड का फाइल नंबर एंड 3 इज यूज फॉर अ स्वैप हेक्स कोड. ओके, आपको 6 नंबर को 83 करना है. दैट्स द पार्टीशन 6 इज अनचेंज. लिनक्स फाइल सिस्टम हुआ है. ओके, so that means already 6 होगा. we'll check one more time. T partition number 6 83 unchanged. Okay, we'll do one more time. Maybe change हो गया right and बाहर आ जाते. ओके, सो आपको अभी ये लिनक्स ओल्डर सिस्टम है. दैट मीन्स मे बी प्रॉब्लम्स होंगे. विल चेक वन मोर टाइम. टी पार्टीशन नंबर 6 एंड हियर विल प्रेस कैपिटल स्वैप. यहाँ आपके अभी ये ओल्डर है, इससे आपको यहाँ मैक्स 81 नंबर ही अवेलेबल है. इसकी वजह से चेंज नहीं हो पा रहा था. एंड सी द नंबर 5 बुट पार्टीशन है. ये पूरा डिफरेंट सिस्टम है. ये का फाइल सिस्टम आ रहा है पूरा. इसकी वजह से आपको मैं कर नहीं पा रहा हूँ. ओके, सो आई गॉट द मैं ये इम्पोर्टेंट ये इसकी वजह से. सो मैं नहीं चेंज करूंगा इसको. एक्स. ओके, सी बाहर. आपको क्या करना है? जस्ट डू वन थिंग. इसके अंदर जाना है, पेस्ट टी 6 नंबर करना है एंड जस्ट एंटर 83. आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एंटर 83. मैं एंटर 83 कर रहा हूं तो चेंज नहीं कर पा रहा हूं, बट आप कर सकते हो उसको चेंज. ओके, क्योंकि इसने माइक्रोसॉफ्ट के पार्टीशन नंबर्स ले लिए हैं, इसकी वजह से मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, सो आप 83 यूज करो. यहाँ 83 करने के बाद में आपका पार्टीशन स्वैप आ जाएगा. सो हम डायरेक्टली करेंगे इसको. ओके, नाउ डू वन थिंग. आपको क्या करना है? जैसे भी आपने पार्टीशन बनाया तो आप LSBL के कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका 6 नंबर का पार्टीशन क्रिएट है क्या. यस, पार्टीशन इज अ क्रिएटेड. नाउ वी नीड टू फॉर्मेट दैट. अब हमें क्या करना है? फॉर्मेट. इसके लिए क्या करना है? मेक स्वैप mk स्वैप. किसको करना है? स्लैश dev स्लैश sda6. ओके, इसको क्या करना है? मेक स्वैप स्लैश sda स्लैश 6. वार्निंग्स दिखाई दे रहा. वार्निंग वाइपिंग ओल्ड एक्सटेंशन फॉर सिग्नेचर. ओके, सेटिंग स्वैप वर्जन 1. सो दैट मीन्स व्हाट, आपका स्वैप हो गया है और आपका ये यूनिक आइडिया आ गया है. ओके, दैट मीन्स फॉर्मेट हो गया. फॉर्मेट कैसे करना है? mk स्वैप स्लैश dev स्लैश 6. अब इसको आपको माउंट करना है. अब lsbl के करके देखो या df H करके देखो, HT करके देखो, आपको यहाँ माउंटिंग नहीं दिखाई देगा. LSBL के से आपको यहाँ माउंटिंग दिखा देगा. ओके, बट डिस्क पे माउंट नहीं दिखा देगा. तो आपको इसको परमानेंट माउंट करना है. ओके, तो परमानेंट माउंट करते समय आपको क्या ऑफ करके रखना है? स्वैप ऑफ. जो हमारा प्रीवियस स्वैप ऑन है, फ्री -h इसके अंदर दिखाई देगा. ये जो स्वैप ऑन है इसको पहले हमें ऑफ करना पड़ेगा. ओके, सो इसके लिए स्वैप ऑफ -a. ये पूरा स्वैप आएगा. नाउ फ्री से आपको 00, यहाँ देखो 8 GB था तो अब 00, मतलब स्वैप राइट नाउ मैंने ऑफ कर दिया है. नाउ vi/etc. एंट्री इसकी भी fs टैब के अंदर ही होती है. vi/etc/fs टैब, और इसके अंदर आपको यूज करना है इंसर्ट मोड हैश. इसके अंदर क्या क्या यूज करना है आपको? यहाँ आपको
डिस्क नेम पास करना है। ओके, यहाँ आप डायरेक्टरी नहीं पास कर सकते, इसके लिए आपको ओनली स्वैप करना पड़ता है। फाइल फॉर्मेट पे भी नहीं पास कर सकते, अगेन स्वैप पास करना पड़ता है। बाकी एज इट इज डिफॉल्ट्स एंड जीरो एंड जीरो, दैट्स इट। सो हमारे डिस्क का नाम क्या है, स्लैश डेव स्लैश एस डी ए 6। ओके, format again directory as a swap, format as a swap, and after that defaults and 0 space 0. That's it. Escape on that board, right quit. Okay, and use mount hyphen a mount as blk. Now check HDA6 है हमारे पास। ओके, नाउ विल चेक df हाइपन h कैपिटल T। यहाँ आपको दिखाई देगा, नहीं सॉरी ये पार्टीशन नहीं, जो आपको दिखाएगा स्वैप ऑन में ऑन करना है स्वैप। उसके पहले आपको फ्री हाइपन h करके देखो, स्वैप अभी भी आपका ऑफ ही है। अब उसको ऑन करो, स्वैप ऑन हाइपन ए फाइल one more time swap on, या डन, स्वैप ऑन हो गया। अब हम चेक करेंगे फ्री हाइपन एच से। स्वैप का प्रॉब्लम हो गया, एडिशनल स्पेस ऐड नहीं हुआ है इसमें, ऑन करने के बाद में भी वर्जन आना चाहिए यहाँ। ओके, हम चेक डिस्क स्लैश डे एस डी ए 6। यहाँ मुझे स्वैप करना है एस डी बी ए पे, and after that 0 0, right quit. Okay, just give me 1 minute. Swap, where is that swap? मेरा पास नहीं है swap off ए swap on free hyphen h swap on swap upon vs। now we'll check free h। क्या बोला, स्टार्ट ऑफ स्लैश डे स्लैश एच डे नो फॉर फाइल और डायरेक्टरी नहीं कर पा रहा है ये। जस्ट गिव मी 1 minute। fi slash dev slash etc slash etc slash fs tab। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है इसको। ओके, wait, just give me 1 minute, I will check that। So of disks slash delete, right quit, disk slash dev
/SDA. Delete 6 number, right? New number 6 was sector. Let's change T6 number. Swap. Linux 19 number. 19. Change the type of Linux file to Linux swap. Right. Part probe and mkfs dot swap /dev/sda6. mkswap /dev/sda6. Okay. vi/etc/stab /sda6. उसके बाद में हमें swap as a partition, swap as a partition, swap of -a free -h mod -h. सी दिखाई दे रहा है आपको अभी। सी फाइल नेम /dev/sda5 partition, okay, -1 priority /dev/sda6 partition size, and the partition is -2. ओके, अभी ये साइज इतना छोटा है कि ये स्वैप के अंदर एडजस्ट हो चुका है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ -s स्वैप ऑन करने के बाद में आप जहाँ देखते हो -s से, तो इससे आपको पता चलता है कि आपका नेक्स्ट जो पार्टीशन 832 ये ऐड हो चुका है। सो बाय यूजिंग दैट वी कैन ऐड द स्वैप मेमोरी। ओके, अगर साइज इसका 2 GB 3 GB होता तो ये 7.9 प्लस 2 GB ऐड हो जाता, तो आपको इजीली डिफरेंस समझ में आता था। बट यहाँ की साइज यहाँ देखो SDB5 के अंदर जो है -1 प्रायोरिटी, उसका जो साइज है ये नियर अबाउट 7.9। ओके, उसमें अगर 832 ऐड हो जाता है तो उसमें चेंज कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल होता 2 GB, तो 7.9 प्लस 2 GB जो हो जाता तो 10 GB 10.9 GB हो जाता। 8.9 एंड 9.9 में मतलब नियर अबाउट 10 GB हो जाता, तो आपको पता चलता था। ये प्रायोरिटी से आपको समझ में आता है कि एक्चुअली अवेलेबल है। ओके, सो लाइकवाइज वी कैन परफॉर्म अ स्वैप ऑपरेशन। सेम थिंग करना है, जस्ट आपको क्या यूज करना है, स्वैप ऑन करना है और माउंट करते समय उसको ऑफ करना है। ये पूरे स्टेप्स मैंने दिए हैं एंड फ्री से आपको स्वैप यहाँ चेक कर सकते हो। इज इट ओके? सो इसके लिए ना नोट्स अवेलेबल है, लेट्स डू वन
ठीक है, क्या करता हूँ मैं, आपको भेजता हूँ तो आपको पता चलेगा इसको। स्वैप 93560 partitions and चेकआउट। स्वैप का मैंने डॉक्यूमेंट भेजा आपको। एट द बॉटम में सी स्वैप ऑन हाइपन एस करते हो आप तो आपको एट द एंड में दिखाई देगा। स्वैप ऑन हाइपन स्पेस एस करते हो तो आपको जो एडेड स्वैप है लास्ट में वो दिखाई देगा और उसका डिस्क का नाम भी दिखाई देगा, dev/hda6 पार्टीशन। ओके, ये मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया है तो आप इसके हिसाब से प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। एंड आफ्टर दैट वी विल कंडक्ट वन लास्ट ऑप्शन, लास्ट है हमारे पास, वो कंडक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट विल क्लोज दैट पार्ट। ओके, सो उसके अंदर लास्ट में क्या आता है अभी, स्क्रिप्टिंग। क्या आता है, स्क्रिप्टिंग। अभी स्क्रिप्टिंग जो है जस्ट 1 मिनट, यहाँ से एग्जिट हो गया और नॉर्मल यूजर पे स्क्रिप्टिंग परफॉर्म करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग की भी दो टाइप्स है एंड इसके अंदर आप टू टाइप्स कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरेक्टिव स्क्रिप्टिंग, नॉन इंटरेक्टिव स्क्रिप्टिंग एंड इंटरेक्टिव। अब ये बताओ मुझे कि इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। ओके, इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है आपको। इंटरेक्टिव में क्या होता है कि यूजर उससे इंटरेक्ट करके, मतलब यूजर से अगर कुछ इनपुट लेना है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, यूजर ने बोल दिया, सो दैट इंफॉर्मेशन विल बी इंटरेक्टिव। ओके, यूजर से कुछ डेटा लेना है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेक्टिव। दूसरा होता है नॉन इंटरेक्टिव, यूजर का कुछ भी मीनिंग नहीं होता है उसके अंदर, जो भी आप इंफॉर्मेशन करते हो वो दैट इंफॉर्मेशन विल बी displayed only. Okay, first of all we'll check some theoretical part of that scripting, bash shell scripting कहते हैं उसे। Okay, so shell, बैच शेल स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, सो वन थिंग विल परफॉर्म बाय यूजिंग दिस, सो यू विल गेट आइडिया। सी bash shell script, it is command line interpreted that interprets the commands and instruct OS to perform necessary tasks। अब जैसे हमने सी लैंग्वेज पढ़ा था, ओके, सी लैंग्वेज में अंदर कंपाइलर का रोल क्या होता है, इट विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। सी कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, that one is binary, either computer can understand 0 or either can computer can understand 1। बट कंपाइलर के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हम कोड करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, लाइक आस्की कोड के अंदर कोड करते हैं, प्रिंट एफ होता है, स्कैन एफ होता है, हैश होता है। ओके, दैट हाई लेवल लैंग्वेज विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। सो ये कंपाइलर क्या करता है, एक्ट एज ए इंटरप्रेटर। ओके, सो ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज। सिमिलरली शेल, शेल क्या होता है, इट इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर that interprets the command and instruct OS to perform necessary टास्क। अब ये स्क्रिप्टिंग जो होता है ये कभी भी ना उबुंटू के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, फेडोरा के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। सो अब जैसे उबुंटू करते हैं हम, तो उबुंटू के अंदर स्क्रिप्टिंग करना है तो इट इज मैंडेटरी टू यूज हैश बिन बैश। ओके, हैश एक्सप्लेनेटरी मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। ओके, और ये होता है आपका कंपलसरी स्क्रिप्टिंग का फर्स्ट हेड, इसको आपको लिखना पड़ता है। ओके, जैसे अब परफॉर्म करते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसके बाद में हम से यहाँ मैं करता हूँ कैट, जैसे एजेएस स्लैश बिन बैश बश, व्हाट इज एजेएस डॉट कैट, उसके अंदर मैंने क्या स्क्रिप्ट लिखा, एजेएस डॉट एस। ओके, फाइल क्रिएट की है, कैट, here we'll do one thing, cat से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, नेम ऑफ दैट फाइल एजेएस डॉट एस एच। एक्सटेंशन, स्क्रिप्टिंग का एक्सटेंशन जो होता है डॉट एस एच होता है। ओके, सो इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ एक्सटेंशन डॉट एस एच। इसके अंदर हम लिखते हैं हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। फर्स्ट विल चेक
non-interactive scripting. After that we will check interactive. Hash exclamation mark slash bin slash bash. After that echo is a command. Okay, by using that we can print the statement on output screen. जैसे हम printf यूज करते हैं वैसे यहाँ हम यूज करेंगे echo. Okay, echo in double quote, welcome to scripting language. Okay, double quote and we'll use control T. बाहर आएंगे, रीड करके देंगे आपकी फाइल ages.hs. सी hash exclamation mark slash bin bash एंड echo के अंदर हमने लिखा है, echo के अंदर echo echo के अंदर हमने मैसेज दिया है वेलकम टू द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इंटरेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन याद रखना है. इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड एक्सटेंशन एज अ एसएच. जैसे फाइल नेम, आपका जो फाइल नेम है डॉट एसएच इज अ मैंडेटरी. अभी इसके एग्जीक्यूट करने के टू वेज है. ओके, टू वेज बाय यूजिंग दैट execute the command. Okay. So here first one is a use bash and file name dot sh. आपको क्या यूज करना है? फर्स्ट विल यूज bash and file name dot sh. See, welcome to scripting language. It is an example of non interactive scripting. स्क्रिप्टिंग कौन सा है? नॉन इंटरेक्टिव है. ओके, अभी एडवांस पार्ट है बट आपको पता चलना चाहिए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर बेसिक पार्ट के अंदर स्क्रिप्टिंग कभी भी नहीं आता है. ओके, जैसे रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बेसिक के अंदर स्क्रिप्टिंग नहीं आता है. बट रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, ये जो एडवांस टास्क होता है उसके अंदर स्क्रिप्टिंग आता है. ओके, बाय यूजिंग दिस वे वी कैन एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट. आल्सो डॉट स्लैश फाइल नेम आपका जो है डॉट sh. बट इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है बिकॉज फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं होती. सो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा ls-l. क्या चेक करना पड़ेगा? ls-l. चेकआउट. इसके अंदर तो बहुत फाइल्स है. हमारा फाइल का नाम क्या है? ages. हियर वी हैव फाइल ages.sh. इसके परमिशंस देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट हाइपन राइट. ओके, सो दैट मीन्स इसके अंदर परमिशंस है अवेलेबल एग्जीक्यूट. सो लेट्स डू वन थिंग, विल क्रिएट वन मोर फाइल. यहाँ हम एक फाइल क्रिएट करेंगे. सो cat demo डॉट डेमो s डॉट sh. ओके, फाइल है. इसके अंदर हम लिखेंगे हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश echo. Here I will get message echo only welcome double quote, welcome double quote and exit from that. Okay, after that cat demo sh will check out executed है. Yes, data available. Now we'll check file format for that. ls-l. और इसका फाइल फॉर्मेट हम चेक करेंगे. डेमो dd फाइल डेमो. या दिस वन. सी डॉट sh. ये फाइल देखो, ये फाइल है. रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है क्या? नहीं. रीड राइट फॉर ओनर, रीड राइट फॉर ग्रुप ओनर एंड रीड फॉर ओनली अदर पर्सन. दैट मीन्स अगर आप बैश से इसे एग्जीक्यूट करते हो, बैश डेमो एस डॉट एस एच, तो ये एग्जीक्यूटेबल होता है. बट अनदर वे जो अवेलेबल है डॉट स्लैश स्क्रिप्ट रन करने की अनदर मेथड डेमो एस एस डॉट एस एच. ओके, डॉट स्लैश फाइल नेम डेमो एस डॉट एस एच. तो ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है. ये क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाई. सो फॉर दैट sudo dot slash demo s dot sh. Now check out. See, command not found. ये क्या बोल रहा है? command not found. उसके लिए राइट की परमिशन आपको नहीं होती. dot slash, where is that command?
डॉट स्लैश डेमो एस डॉट एस एच। ओके, परमिशन डिनाइड बोल रहा है। ओके, दैट मीन्स आपको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, इसकी वजह से ये क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। सो डू वन थिंग, इसको एग्जीक्यूट को परमिशन दे दो, sudo chmod प्लस प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन आपको देना है तो u प्लस एग्जीक्यूट, यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन देना है, किसको, डेमो एस डॉट एस एच, ये फाइल को आपको परमिशन देना है। नाउ विल चेक ls-l और इसके अंदर डेमो सी। नाउ ये कलर भी चेंज हो गया इसका, और इसको एग्जीक्यूट की भी परमिशन मिल गई, रीड राइट। ओके, नाउ विल एग्जीक्यूट डॉट स्लैश डेमो एस एच। नाउ सी द फाइल इज एग्जीक्यूटेड। इतना हेक्टिक नहीं है, बाय यूजिंग टू वे वी कैन रन द स्क्रिप्ट। फर्स्ट वे के अंदर क्या है हमारे पास, एक नंबर में आप बैश करके रन करो, बैश फाइल नेम डॉट एस एच करके रन करो। या सेकंड वे में आपको क्या करना है, आपको रीड की परमिशन, एग्जीक्यूट की परमिशन देना है, और उसके बाद में जस्ट डॉट स्लैश फाइल नेम अंडरस्कोर डॉट एस एच। ये दो वे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इंटरेक्टिव स्क्रिप्टिंग। नॉन इंटरेक्टिव मतलब क्या है, यूजर का, पैसिव स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है इसको। देयर इज नो इंटरेक्शन फ्रॉम द यूजर। आपको जैसे नाम प्रेस करना है, जैसे हम स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं, जैसे हमारे पास स्क्रिप्ट है cat demo डॉट एस एच, अपडेट कर लिए, डबल कोट देना है आपको। हियर आई विल राइट वन मोर स्टेटमेंट को, डबल कोट ओपन हेलो डबल कोट क्लोज, फिर से मैं करता हूँ इको डबल कोट आई एम फाइन, जैसे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, फाइन डबल कोट एंड सी। नाउ टेक दैट फाइल cat demo s.sh, तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। नाउ एग्जीक्यूट दैट फाइल डॉट स्लैश demo s.sh, see will get output welcome hello I am fine. So it is an example of non interactive. Okay, let's do one more thing, cat create, and here file will example dot sh. Here we'll print the student information, hash exclamation mark slash bin slash bash echo double quote name echo roll underscore number colon 22 echo mobile control C। अब इसे बैश से रन करवाना है आपको तो डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज chmod एग्जीक्यूट की परमिशन देना है आपको, chmod u प्लस x and example dot sh, and now dot slash example dot sh, see you'll get output name roll number mobile number. So this is an example of non interactive scripting। अब हम एग्जांपल देंगे इंटरेक्टिव स्क्रिप्टिंग का, जैसे यूजर से मुझे इनपुट लेना है और फिर उसे डिस्प्ले करना है, तो सेम हो जाएगा इसका। जस्ट आपको एडिशनल रीड नाम के ऑप्शंस होते हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वैसे हमें परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कैट डेमो और ex2 डॉट sh, सेम हैश exclamation mark slash bin slash bash echo enter your name डबल कोड रीड आपको ये पर्टिकुलर जो है इसको रीड करना है, सो वेरिएबल का नाम देना है
आफ्टर द बिफोर दैट आपको रीड लिखना है, वेरिएबल का नाम देना है नेम, दैट्स इट। अब इसको प्रिंट करना है, देन आई विल यूज इको, ओके, डबल कोट योर नेम इज कोलन डबल कोट स्पेस। अब जो वेरिएबल है ना आपका, ये वेरिएबल जो दैट इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन अ नेम वेरिएबल, सो इसको यहाँ डिस्प्ले करना है, ओके। सो बिफोर डिस्प्ले आपको डॉलर यूज करना है और उससे बाद में नेम करना है, ओके, वेरिएबल का नाम देना है, सिंपल। कंट्रोल सी, इसे अगेन बैश से रन करेंगे हम, बैश ext2.sh, अनएक्सपेक्टेड डबल कोट के अंदर, जस्ट 1 मिनट, check that file. Instead of that, here I will use vi insert mode, insert, and echo your name is, here I will use dollar name attribute, hash bin bash echo, enter your name. Oh, here I forgotten, here is the error, यहाँ डबल कोड देना भूल गया था, या enter your name, escape, right quit. Now we're trying to execute that script, bash ext2.sh, enter your name is Arvind, check out, your name is Arvind, विजिबल है आपको स्क्रिप्ट, enter your name मैंने अरविंद डाला था, again I will execute that script, see you will get output, your name is Arvind Zadav. Like that, here we will create one more script, stud script. So here I will create vi stud.sh script. In that I will write hash exclamatory slash bin slash bash, okay. Now echo and double quote, enter your name colon, read that information into variable, here I will use the variable name as the name, again echo and double quote, enter your roll number, roll number, read by using the read command and store it as a roll, echo. It is an example of interactive shell scripting, enter your mobile number and read it in as move. Now we will display that information, echo and double quote, your name is colon, here will space dollar name, after that echo double quote, your second one is a roll number, a roll is colon, and here will pass dollar roll, again one more time echo your mobile is colon double quote close dollar mobile. Now scripting is done, save that, right quit. Now we'll execute by using dot slash ex2, what will be the name of file, stud stud.sh, but that file is not executable because that file does not have execute permissions. First of all we need to provide a permission, chmod
user plus x permission execute, and the name of file is a student.sh. Now we're trying to execute that file. Enter your name. My name is Sadhav. It's V. After that, roll number. Roll number is 1, and mobile number. Mobile number is a, yeah, this one. So your name is something, your roll number is will get, and your mobile number is. Is it okay? So in that section we learned interactive shell scripting and non-interactive shell scripting and interactive shell scripting. Okay, difference between that: in non-interactive shell scripting it will be considered as a passive shell scripting, and interactive shell scripting will be considered as active shell scripting. Non-interactive shell scripting does not interact, or it does not interact with user, whereas interactive shell scripting you can interact, that shell scripting interact with user, so you can take you can accept input from the user. So this is overall about the scripting. So for the basic level, we need to understand how to create this scripting in Ubuntu. So for that mandatory hash, for that mandatory is a hash bin slash bin, sorry, hash exclamation mark slash bin slash bash. It is mandatory. And echo is used for echo is used to print the information, like in C language we use a printf, here we will use a echo. Okay, after that in the previous section we already learned that here read is a parameter available which is used to accept the input from user. In like C language we use a scanf, but here we need to use read. Okay, second, name is a variable. We already seen what is a variable. A variable having a name which is used to store the value, and the value will be changed. Okay, जैसे C language में पढ़ा था वो same है. Okay, variable is nothing but a name given to a storage area whose value can be changed. After that, read is a parameter. That's it. ये होता है आपका scripting interactive. So does anyone have any query? ये मैंने एग्जांपल दिए यहाँ आपको, ये नोट्स अभी भेजता हूँ आपको इसके स्क्रिप्टिंग के. Does anyone have query in partition, swapping and shell scripting? पार्टीशन और स्वैप को तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. बिफोर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो 2 to 3 टाइम्स. 2 से 3 बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज सी ये डिस्क रिलेटेड टास्क है. अगर गलती से कुछ हो गया है तो आपकी पूरी डिस्क जा सकती है. ओके, सो डू दिस प्रैक्टिकल इन पार्टीशन ओनली. VMware में ही आपको पार्टीशन करना है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. इज इट ओके? प्रेजेंस. किसी को कुछ क्यूरी है? Praveen, Amol, Ritika, do you have any question in scripting? No, sir. Easy है scripting and not tricky. For that also we need to perform some practical. Sir, practice लगेगी sir. Yeah, it required a practice, then you will get that information. तो ही कर सकते हैं, otherwise नहीं. So I will do one thing. ये जो recording है इसको मैं अभी stop कर